welcome back again to my class Parts of Wisdom. So this is grammar examiners. Many of the videos have been created on this topic. So if you have not studied till now, you can go to the playlist and make revision. Today we are going to make revision of determiners, those who have already studied this chapter, this topic, determiners. So you can easily make revision by some of these sentences and check yourself how much you have understood. So sentence number 1, the flowers preparing for bouquet were plucked from plants over there growing in my garden. So that or those, that or these or those, this or those. So here you can see two fill-ups and two options have been given. The flowers preparing for bouquet. Now bouquet, that is singular in number. Preparing for this bouquet. Bouquet is nearby. Were plucked from plants over there. Plants. First of all, plants is in plural in number. Over there. Over there, this word itself, this phrase itself is indicating or pointing out the thing that is a little bit far. ओके तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा डिस्टेंस है प्लांट्स में एंड वो भी प्लांट्स हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? those. The flowers preparing for this bouquet were plucked from those plants over there growing in the garden. Next one. You must understand dash responsibility by yourself. My responsibility, your responsibility, their responsibility, or our responsibility. Now here you must understand. Here yourself also indicates that what possessive case must be placed here or possessive adjective. Your responsibility. नेचुरल सी बात है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद इंसान समझेगा, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं समझेगा ना. ठीक है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड योर, ओके, you, yourself. So you must understand your responsibility by yourself. He was looking for dash lost opportunity. He was looking, him, he, himself or his. Now here again case. Which case must be placed here? This is rule of, or this is exercise of determiners. In determiners, obviously determiners indicate somewhere adjective. Determiners is a part of adjective itself. So, and possessive case is also part of adjective. Okay, so here we have to him. Him is already not the part of neither determiners nor adjective. Okay, तो him तो वैसे भी use नहीं होगा. He pronoun है, pronoun भी नहीं होगा. Himself again pronoun. So possessive. Now his is possessive pronoun also and his is possessive adjective as well. Okay, तो नेचुरल सी बात है, his यहाँ पर प्लेस होगा. He was looking for his lost opportunity. There are at least dash hopes left after everything is spoiled. There are at least none hopes, some hopes, something hopes, nothing hopes. Obviously, there are at least is indicating at least कम से कम. Okay, तो कोई ना कोई होप वहां पर है, तो क्या है कि नन तो वैसे भी नहीं हो सकता, नथिंग भी नहीं होगा. नाउ सम और समथिंग. सी सम, first of all, some is a part of determiners and it is always placed with, in determiners it will obviously be placed before noun and hopes is a noun. Okay, second thing, something. If you pick up for something is actually the part of pronoun and it is again part of adverb.
It is again part of adverb, while some is part of adjective or determiners, we can say, and it is part of pronoun. Okay, सम पार्ट है प्रोनाउन डिटर्मिनर का, जबकि समथिंग पार्ट है प्रोनाउन और एडवर्ब का। तो यहाँ पर डिटर्मिनर है तो यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं होता कि समथिंग यूज हो, और वैसे भी ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले सम का यूज होगा, और सम जो है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी है। तो देयर आर एटलीस्ट सम होप्स, देयर आर एटलीस्ट सम होप्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, वैसे तो बहुत इजी सेंटेंस है, स्टिल यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर, क्योंकि एवरीथिंग को देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाना इस तरीके का सेंटेंस आ जाए तो, ठीक है। एवरीथिंग को देख करके वहां पर समथिंग मत प्लेस कर देना। सम होप्स, देयर आर एटलीस्ट मीन्स इस तरह के अगर बाई चांस ऑप्शन आए तो बहुत ध्यान से समझना सेंटेंस को, उसके बाद में उसमें फिल करना। There are at least some hopes left after everything is spoiled. Okay. I think you have not observed nature closely. Dash part of it can teach you a lot. Any part of it, enough part of it, some part of it, or more part of it. Now, read the sentence from the beginning. I think you have not observed nature closely. लगता है तुमने नेचर को ठीक से नहीं देखा। Enough part, अब देखिए enough part of it और some part of it कहीं ना कहीं प्लेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेस शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेस शो कर रहा है कि आई थिंक यू हैव नॉट ऑब्जर्व नेचर क्लोजली। एनी पार्ट ऑफ, इसका कोई भी पार्ट जो है वो तुमको कुछ भी सिखा सकता है, ठीक है। एनी पार्ट है, देखिए स्ट्रेस के साथ कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल केसेस में एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ होता है, ठीक है। डिटर्मिनर्स में नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ होता है, जबकि सम का यूज पॉजिटिव के साथ होता है, ठीक है। लेकिन उसी बीच में कुछ रूल्स ये आते हैं कि अपोजिट हो जाता है, कि कुछ कंडीशंस आती हैं। उन कंडीशंस में क्या होता है कि रिप्लेस हो जाता है कि इंटरोगेटिव में सम आ जाता है, और हाँ इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में सम आ जाता है, और पॉजिटिव में एनी आ जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था डिटर्मिनर के चैप्टर में, ठीक है। तो एनी पार्ट यहाँ पर स्ट्रेस के साथ कि उसका कोई भी पार्ट आपको सिखा सकता है। जब स्ट्रेस के साथ इस तरीके से कुछ शो होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये सम नहीं होकर के एनी हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर रूल को आप रटेंगे, ध्यान से समझिए, अगर डिटर्मिनर के या कोई भी ग्रामर के टॉपिक के जो भी रूल्स हैं उनको रटेंगे, रटने से काम नहीं होगा। हमको क्या है प्रैक्टिकली समझना होगा, विद सेंटेंसेस समझना होगा, ठीक है। अगर आप रूल्स को आधा अधूरा सा समझ के पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि हमने क्या पढ़ा है कि सम का यूज तो उसमें होता है पॉजिटिव में होता है, और एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता है, और ये पार्ट तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है नहीं, ठीक है। तो रूल्स को बहुत ध्यान से और क्लोजली समझना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। देयर इज नेवर डैश पेट्रोल आफ्टर राहुल यूजेस द कार। देखिए दिस क्वेश्चन आई हैव एक्चुअली टेकन फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल पेपर, सीबीएसई से जो अभी भी सैम्पल पेपर इश्यू हुआ है, ओके, इसी के बेस पर, इसी वजह से मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाए हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े से घुमा करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देयर इज नेवर डैश पेट्रोल आफ्टर राहुल यूजेस द कार। मच पेट्रोल, मैनी पेट्रोल, अ लॉट पेट्रोल, अ लिटिल। नाउ सी मैनी तो वैसे भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है पेट्रोल। अ लॉट क्योंकि वो बोल रहा है कि नेवर, वहां पर बचता ही नहीं है, तो अ लॉट तो भी नहीं होगा। नाउ देयर अराइजेस अ कंफ्यूजन, मच एंड अ लिटिल, मच एंड अ लिटिल। देयर इज नेवर अ लिटिल, थोड़ा, यानी कि राहुल जो है वो जाता है कार लेकर तो पेट्रोल बचता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है अ लिटिल, यानी कि थोड़ा सा भी नहीं बचता है। अ लिटिल का यूज हो सकता था, बट यहाँ पर एक एडवर्ब ऐड हो गया इसमें बीच में, और वो हो गया नेवर, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत क्लोजली समझ लीजिए कि जैसे नेवर या नॉट,
इस तरीके से नेगेटिव मार्क के अगर आपके पास कोई भी इंडिकेटिंग वर्ड आते हैं, नेगेटिव मार्किंग मीन्स नेगेटिव वर्ड्स यूज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, मच का यूज होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर नॉट होता ना, देयर इज नॉट मच, ठीक है, देयर इज नॉट मच होप, ठीक है, देयर वर नॉट मैनी पीपल ओवर देयर, ठीक है, तो नॉट, नेवर, ये वर्ड्स क्या है, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर मच का यूज होगा, लिटिल या लिटिल का यूज नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नेवर मच पेट्रोल, ओके। इसी के बेस पर ये सेंटेंस है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, एटलीस्ट, देयर आर एट लीस्ट, है ना, देयर आर एट लीस्ट। तो हमको एकदम से बिल्कुल क्या ओवरवेल्म नहीं होना है सेंटेंस को देख करके, सेंटेंस को बहुत ध्यान से उसके एक एक वर्ड को पकड़ते हुए समझ लीजिए, उसका ऑपरेशन करना है पूरे एक सेंटेंस का, ठीक है। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, खुश भी नहीं होना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि उतने सेंटेंस हार्ड भी नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है। पूरे सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तभी हमारे सेंटेंस क्या है, ठीक हो पाएंगे। ओके, सो देयर इज नेवर मच पेट्रोल आफ्टर राहुल यूजेस द कार। देन dash pen from my pencil box has been lost. Dash pen from my pencil box has been lost. Now, each pen from my pencil box, every pen from my pencil box. Now see, each pen from my pencil box. तो वैसे भी यूज नहीं होगा, एवरी पेन और ऑल पेन और बोथ पेन। देखिए, अगर बोथ होता, ध्यान से समझिए, अगर बोथ होता तो उसके पीछे द का यूज होता, ओके, बिकॉज आफ्टर बोथ वी ऑलवेज प्लेस द, ध्यान रखिए आर्टिकल का रूल, ठीक है। ऑल एंड बोथ दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें द का यूज जस्ट उनके बाद होता है, बाकी नॉर्मल केस में क्या होता है, द का यूज पहले होता है, ठीक है। तो ऑल, द या बोथ द, अगर ऑल या बोथ होता, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स भी जो थे वो यहाँ पर सही हो सकते थे अगर यहाँ पर द का यूज होता, ऑल द पेन्स, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर पेन जो है वो सिंगुलर है, पेन्स नहीं है, ओके, तो ये भी एक सिंपल पहचान है, बहुत इजी पहचान है, पैन है, पेन्स नहीं है, ठीक है। अब आती है बात ईच एंड एवरी, ये दोनों ही वर्ड्स जो है सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं। इन दोनों के साथ अगर हम वर्ब की बात करें तो ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, ठीक है। अभी हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ब में भी ये रूल आपको फंसा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए कि वर्ब क्या है, हमेशा ही ये सिंगुलर यूज करते हैं, हैज बीन का यूज हुआ है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। नाउ कम्स द थिंग दैट ईच होगा कि एवरी होगा। Every pen from my pencil box has been lost, or each pen from my pencil box has been lost. Now what is the difference? बहुत ही क्लोज डिफरेंस है, ठीक है। ईच जो होता है वो क्या होता है कि जैसे दो लोग या दो कोई भी वस्तु है उनके बीच के डिफरेंस को दिखाता है, ठीक है, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ओके, दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एवरी जो है वो कभी भी हमेशा दो से ज्यादा की बात करता है, ठीक है। जो एवरी वर्ड है वो हमेशा दो पर्सन या दो लोग, दो जो भी टू थिंग्स हैं, टू पर्सन्स हैं, उनसे ज्यादा लोगों की बात करता है, यानी कि कभी भी दो लोग के बीच की बात नहीं करता है, ठीक है। जबकि ईच जो है वो दो लोग के बीच की बात हो या दो से ज्यादा, इन सब की बात करता है, ओके। सो समवेयर यू कैन से दैट एवरी इज रिप्लेस्ड समवेयर विथ ऑल, ओके। एवरी एक्चुअली काम करता है कहीं ना कहीं ऑल का, ठीक है, जब सभी लोगों की, हर एक व्यक्ति की, लेकिन सभी लोगों की बात हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईच पेन का यूज होगा, तो कह रहा है कि मेरे पेंसिल बॉक्स से लगभग सारे पेन हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यूज होगा एवरी,
ओके, यहाँ पर यूज होगा एवरी। एवरी पेन फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स हैज बीन लॉस्ट, दैट मीन्स ऑल द पेन्स फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स have been lost. ओके, ऑल द पेन। ओके, यहाँ पर देखिए फिर से इसको समझिए, जैसे कि ईच के लिए की जब हम बात कर रहे हैं कि तो क्या है, इस कंडीशन में हम ग्रुप के बिल्कुल हर एक पर्सन को अलग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली देख रहे हैं, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। जब एवरी की बात कर रहे हैं उसमें भी बात तो सभी की कर रहे हैं, पर उसको एक पूरे ग्रुप के रूप में देख रहे हैं, सभी को पूरे ग्रुप में के रूप में देख रहे हैं। इसके आगे एग्जाम्पल्स हैं और आगे सेंटेंसेस हैं, उनसे समझिए और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर होगा एवरी पेन फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स हैज बीन लॉस्ट। नेक्स्ट वन, डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास नीड्स, डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास नीड्स काउंसलिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑल का यूज नहीं होगा, नन का यूज नहीं होगा। नाउ सी एवरी और each, the students of this class need counseling. ओके, सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। ऑल का यूज नॉर्मल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि भाई यहाँ पर V5 का यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट। इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर इन नंबर वी विल यूज ओनली V5। ओके, सो ऑल का यूज नहीं होगा, प्लस ऑल के साथ ऑल का यूज होता तो द का यूज भी होता उसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर द कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। एवरी का यूज होगा, बट ये एक्चुअली कहीं ना कहीं एवरी जो है वो ऑल को ही रिप्लेस कर रहा है, बट यहाँ पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स तो है नहीं, द भी नहीं है। ओके, एंड द अदर थिंग इज दैट द स्पीकर is indicating to all the members of the group, okay, all the class, that means to say all the students need counseling. Okay, so in that sense every student of this class needs counseling. अब देखिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल मीट मी फॉर काउंसलिंग, ईच, एवरी, ऑल और नन नहीं होगा, ईच ऑफ एवरी। यहाँ पर ईच का यूज होगा, यहाँ पर ईच का यूज होगा क्योंकि ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल मीट मी फॉर काउंसलिंग when we are pointing out the people, the number of people, each and every single person separately, each student, जब हम गुस्से में इस स्टूडेंट का इस क्लास का हर स्टूडेंट मुझसे आकर मिलेगा काउंसलिंग के लिए। ओके, सो समवेयर यू हैव टू नोटिस अ लिटिल बिट स्ट्रेस। ओके, ये थोड़ा सा हमको बहुत ही क्लोज है, ये दोनों एवरी और ईच आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा कि जब वो स्ट्रेस यानी कि फोर्स ज्यादा दे रहा है ना, तो ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट मेरे इस क्लास का मुझसे आकर मिलेगा, ठीक है, और ये सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट यानी कि वहां पर भी बात वही है कि इस पूरी क्लास के हर एक स्टूडेंट के, लेकिन वहां पर क्या स्ट्रेस कम है, ठीक है। लेकिन जब हम और फोर्स के साथ उसी सेंटेंस को बोलेंगे तो वो क्या करेगा, ईच को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर या काउंटिंग आती है तब भी वहां पर ईच का यूज करते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। Then the next sentence, most of you showed dash concern for the practice papers prepared by me with my hard labor, so now I'll share only with those who have respected my hard labor. Now see, less, least, little or a little. Less concern, least concern, a little concern or little concern. Now less will not be there, obviously. If there had been less, you would have the word than. Okay, लीस्ट का लिस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट में पूरे के पूरे ग्रुप में जब एक कोई भी चीज को बहुत ज्यादा या बहुत कम करके दिखाते हैं उस समय ये लिस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो वैसे भी नहीं होगा। अगर होता तो इसकी एक पहचान है कि इसके पहले द जरूर होता, ठीक है, द होता या तो एटलीस्ट होता या फिर द होता, द लीस्ट, ठीक है। लेस होगा, लेस होता तो THN देन का यूज होगा, ठीक है। नाउ कम्स लिटिल एंड अ लिटिल। Remaining sentence, we have to read the complete sentence. Most of you showed dash concern for the practice papers
prepared by me with my hard labor. So now I will share only with those who have respected my hard labor. ओके तो यहाँ पर आगे जब सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है तो एक स्ट्रिक्ट इमोशन को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि लगभग काफी लोगों ने क्या है इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कंसर्न नहीं दिखाई। ओके तो लीस्ट एंड अ लिटिल का मीनिंग क्या होता है? सम, while little means hardly any। ओके बहुत मुश्किल से ही कुछ ही लोग, ओके कुछ ही लोग या कुछ ही थोड़ी बहुत, यहाँ पर क्योंकि कंसर्न है ना हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, इस वजह से यहाँ पर यूज होगा लिटिल। मोस्ट ऑफ यू शोड लिटिल कंसर्न, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नन, almost none, almost no. Most of you showed no concern, almost no concern for the practice papers prepared by me with my hard labor. So now I'll share only with those who have respected my hard work. Dash little grain Lancho had was spoiled. Little grain means little grain, I have already placed here, or a little, the little or less. Little grain Lancho had. Little, a little, the little और less. Again less का यूज नहीं होगा क्योंकि then नहीं है इसके बाद, ठीक है। The little और a little. In caution it is asked that ग्रेन लैंचो हैड, यहाँ पर आगे का जो सेंटेंस होता है उसको बहुत ध्यान से समझना होता है कि ग्रेन लैंचो हैड यानी कि वो ग्रेन जो कि लैंचो की थी, यानी कि जितनी भी, ठीक है, जितनी भी थी वो स्पॉइल हो गई, ठीक है, स्पॉइल हो गई। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा द लिटिल ग्रेन लैंचो हैड वॉज स्पॉइल्ड बाय द हेल स्टोन। डैश एनकरेजमेंट इज एनफ even for a teacher to help the students in their studies. Dash encouragement, less encouragement, least encouragement, little encouragement or a little encouragement. So obviously a little यानी कि थोड़ी सी भी encouragement अगर टीचर को मिलती है तो वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है स्टडीज में। ओके Dash persons keep the secret. Few person, a few person, the few person, none. None person, because none के बाद यहाँ पर ना क्या हो गया है, नाउन का यूज हो गया है, नाउन आता है, नन आता है तो कोई नाउन नहीं आता है, डायरेक्टली आता है। जैसे none is present there, none was present there। ओके तो none तो वैसे भी नहीं आएगा। The few persons kept a secret, आगे कुछ नहीं बोल रहा है, इसको सेंटेंस को एक्सपेंड करके कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अ फ्यू पर्सन, नो, सीक्रेट की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट नन कह सकते हैं। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होता है कि बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर, तो यहाँ पर आएगा फ्यू। ओके फ्यू यानी कि फ्यू पर्सन्स कीप द सीक्रेट यानी कि ऑलमोस्ट नन, नो पर्सन कैन कीप द सीक्रेट। ओके तो दैट इज वाई फ्यू का यूज होगा। Dash pieces of advice you gave me were really helpful. Dash pieces of advice you gave me were really helpful. So few नहीं, the few भी यहाँ पर होगा या नहीं होगा, a few and none. Okay. So the sentence is saying dash pieces of advice you gave यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस को एक्सपेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ाया दिया गया है कि वो एडवाइस जो कि तुमने दी थी, ठीक है। द फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस यानी कि जितनी भी एडवाइस है ना, द फ्यू, द फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस you gave me were really helpful. So the few will be the correct answer.
Do you still